approved an excise policy for 2022-23. It has been notified. It has been put in the public domain. It is broadly a policy which is similar to the policy of the last year. There are certain objectives of the policy which have been defined very clearly in the policy. The basic purpose is to generate greater social consciousness and awareness about the harmful effects of liquor, alcoholic beverages and drug abuse. We want to promote transition from high alcoholic content beverages to low alcoholic content beverages. We are trying to rationalize the number of taxes and duties and other levies to optimize revenues for common good. The revenue that we generate from excise policy is used for the developmental programs in the UT of J&K. The objective is to check bootlegging and smuggling of liquor and narcotic drugs, and also to the consumers to provide them a choice of liquor brands and a level playing field. Certain changes have been made in the policy of last year. For example, there will be e-auction of the vents JKEL2, and if there is inadequate response or no response for certain vents, there will be a re-auction, and if there is again not satisfactory response, then there will be a limited tender for the remaining locations. The earnest money deposit has been increased from 5 lakh to 7 lakh. The minimum guaranteed revenue has been increased by 10%, and the minimum reserve bid has been increased from 5 lakh to 10,000 to 10 lakhs. And the J&K Bank will be the third party which will be conducting the e-auction through a secure and tested portal. We have also laid down the eligibility conditions for participation in the bidding process. The bidder should not be below the age of 21 years. The bidder should be a domicile of UT of Jammu and Kashmir. The bidder should have immovable property in the UT of Jammu and Kashmir equal to 100% of the bid value, and he will produce a property certificate to this effect. The bidder should not be convicted of any non-bailable offence in any criminal court. The bidder should not be convicted or reasonably suspected of committing or conniving at the commission of any non-bailable offence under the Excise Act or Opium Act or Dangerous Drugs Act, and bidder should not be a defaulter of the State Taxes Department and under various acts. One individual can apply for more than one vents, locations, but only one location will be allotted to one bidder. If he applies for 3 or 4 locations and his bid is highest for a particular location, he will be allotted that vent. The other vents will go to other persons. So one person can be allotted only one vent JKEL2 license. Then we have also specified the timelines in which the process would be completed. For example, the highest bidder has to deposit money in a given time frame. 50% of that has to be deposited within 5 working days, and then the bidder will apply for clearance of the premises from the district magistrate within 5 working days, and license will be issued. This district magistrate shall convey the clearance or otherwise within a period of 15 days. In case a highest bidder, H1 bidder, fails to deposit the bid amount within the stipulated time, then the offer will be made to the second highest bidder, H2, but he has to match the rate of the H1 bidder. And to encourage local production and facilitate export, we are exempting export duty on liquor in the policy 2022-23, and we are also controlling distillation, illegal distillation, and provide a regulated legitimate drink to the consumer in the unserved and underserved areas. And for your kind information, I would like to place some facts before you. In 2020-21, the excise revenue that was generated in J&K was 1350 crores.
And this year in 2021-22 we are expecting an excise revenue of 1500 crores, and next year we are expecting a revenue of 1600 crores. So these are the brief points I wanted to make clear to you. For further details you can ask questions, and our excise commissioner Sahab, Mr. K.S. Chib, is here with us and he will answer the questions. Chalu Sahab, I have one particular question about you. How much you have generated revenue from the Srinagar Valley and Jammu? Can you differentiate it? वो दे देंगे आपको, वो आपको सेपरेटली दे दिया जाएगा. अभी टोटल फिगर हमारे पास श्रीनगर का और जम्मू का अलग अलग नहीं है. नहीं, ये टोटल रेवेन्यू है श्रीनगर और जम्मू. J&K. What is the difference between new policy and old policy? There are certain changes that I have said. Eligibility conditions में कुछ चेंज किया गया है, कुछ हमने अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट बढ़ाया है, मिनिमम गारंटीड रेवेन्यू बढ़ाया है और मिनिमम रिजर्व बिड बढ़ाया हुआ है. हमने प्रोविजन रखा है ऑक्शन का, री ऑक्शन का, लिमिटेड टेंडर का, और फिर हमने एक्सपोर्ट ड्यूटी जो लिकर पर है उसको एग्जेम्प्ट किया है 2022-23. चलो साहब, आई हैव अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. जिसने अभी वेंडर ने अभी किसी को अलॉट हो गया कोई दुकान या कोई कुछ, he has to go for so many character certificates, पुलिस से, डीसी से, एक्साइज से, कहीं भी जिन्होंने पहले निकाली हुई है, क्या दे आर? मैं इसमें क्लियर करूंगा आपको. ये दो किस्म की लाइसेंसिंग है. एक है जो लिकर वेंड्स हैं, दुकानें हैं, रिटेल लाइसेंसिंग. उसमें फॉर्मेलिटीज तो पूरी करनी पड़ती है कि स्कूल से इतना दूर होना चाहिए, एनओसीज डिफरेंट एजेंसीज का होना चाहिए. वो कोर्ट की डायरेक्शंस भी हैं और एक्साइज एक्ट के हिसाब से भी है. उसके बारे में कोई ग्रीवेंस किसी का नहीं था. लेकिन बार्स का पिछले साल एक इशू उठा था कि हमको भी सारी यही एनओसीज लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है. फिर हमने लास्ट ईयर एक्साइज पॉलिसी में अमेंडमेंट किया था और हमने कहा था कि जो एक्साइज एक्ट में और एक्साइज रूल्स में जो एनओसीज और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, सिर्फ वही पूरी करने की ज़रूरत है. उसको हमने बाकायदा इस साल की पॉलिसी में डाला. यूथ जो जम्मू कश्मीर का है, जो अगर वो अपने 2-4 वेंडर 2-4 इकट्ठे होके एक वाइन शॉप का खोलना है, क्या उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन इन सब चीज़ों में? नहीं, यूथ के लिए नहीं. जो ऑक्शन प्रोसेस है ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए, तो वो तो रखा है. अब हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि यूथ को देना है, जो एज्ड आदमी है उसको नहीं देना है? इस तरीके का क्लासिफिकेशन है, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी. उसके लिए बड़े तरीके हैं, उसके लिए बाकी तरीके हैं. जो ये लिकर वेंड्स हैं उस पर जो लोग एम्प्लॉय होते हैं, एक लिकर वेंड पर 3-3, 4-4 लोग तो एम्प्लॉय होते ही हैं, तो उनको उसमें यूथ होते हैं, जनरली यूथ होते हैं. बेशक प्रॉपरेटर कोई और हो, अगर एज्ड पर्सन भी हो, उसमें यूथ होते हैं, तो उसका बढ़ावा और हम देने को तैयार हैं. और दूसरा ये कि अगर किसी ने बिजनेस करना हो, बैंक के पास लोन के लिए जाना है, उसमें भी हम मदद करने को तैयार हैं. सर, जो प्रीवियस लाइसेंस होल्डर थे उनके लिए कुछ इसमें है, या फिर जो इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं उनके लिए? इसमें मैंने बताया आपको कि ये पॉलिसी पिछले साल की पॉलिसी की तर्ज पर है, लेकिन इसमें क्लॉज रखे हैं. जैसे हमने एलिजिबिलिटी कंडीशन बताई, हमने बताई बिडर शुड नॉट बी बिलो द एज ऑफ 21 ईयर्स. द बिडर शुड बी a domicile of UT of Jammu and Kashmir. The bidder should have immovable property in UT of J&K की नई क्लॉज डाली है, equal to 100% of the bid value, and he has to produce a property certificate. उसके अलावा हमने ये भी कहा है कि ऑक्शन में अगर कुछ हमको इवेंट्स रह जाते हैं, हम री ऑक्शन भी करेंगे. उसमें भी हमको कुछ दुकानें, लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, कुछ दुकानों का रिस्पॉन्स हमको नहीं मिला था, तो उसमें हम एक लिमिटेड टेंडर करेंगे जिसमें पिछले 5 साल के जितने भी लाइसेंस होल्डर्स हैं वो एलिजिबल. सर, लास्ट ईयर जो एक्साइज पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी, क्या आपको लगता है कि एक रेवोल्यूशनरी चेंज जो है वो आया है? और दूसरी तरफ जो वाइन ट्रेडर्स थे उन्होंने कई सवाल उठाए थे, कई कंट्रोवर्सी भी रही थी. उन्होंने कहा था कि ट्रांसपेरेंसी का जो एक टर्म थी उसको यूज किया गया था, क्या वो ट्रांसपेरेंसी जो है वो आ पाई है? सवाल ये उठाए जा रहे थे कि कहीं पे पूलिंग हो रही है, कहीं पे हैकर्स को बिठाया हुआ है, तो किस तरह का चेक आपके डिपार्टमेंट द्वारा और कैसा मैकेनिज्म जो है वो बनाया गया? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, जो हमारा सिस्टम है ई ऑक्शन का, ये थर्ड पार्टी जम्मू एंड कश्मीर बैंक का ई ऑक्शन का पोर्टल है, उसके ज़रिए ई ऑक्शन होगा. और हमने एलिजिबिलिटी कंडीशंस आपको बताई, तो उसमें जो लोग एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, और उसको पूरे ऑनलाइन सिस्टम है, इसमें कोई हैंकी पैंकी का सवाल नहीं पैदा होता. जो कंडीशंस हमने रखी हैं वो भी ऐसी रखी हैं कि डोमिसाइल होना चाहिए, हमारे ड्यूटी का ही होना चाहिए,
उसके पास प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए 100% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, ये सेफगार्ड्स हमने बिल्ड किए। सर इसमें JKL2 में आप कितने इवेंट्स के लिए ये ऑप्शन करने जा रहे हैं? बताएं। ये 228 पिछले इवेंट्स थे और 51 हमने नए इवेंट्स भी इसमें इंक्लूड किए हैं, तो 279 टोटल इवेंट्स हैं जो इस वक्त अभी 51 है ये अर्बन एरियाज में है या कुछ? नहीं, ये उन एरियाज में हमारी इसमें क्राइटेरिया ये था कि जो अनसर्व्ड एरियाज हैं, जो हमारे महकमे में जहाँ हम देखते थे कि जहाँ पे इलीगल जो लहान प्रोडक्शन होती है या इलीगल लिकर होता है, उन एरियाज का हमने सर्वे करके एक कॉन्शियस डिसीजन लेके, और साथ में हमारा ये था कि एक क्वालिटी लिकर मिले कंज्यूमर को, ताकि जिसके ऊपर गवर्नमेंट की सर्टिफिकेशन हो, क्वालिटी कंट्रोल। तो लास्ट ईयर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी गई जब आपने ई ऑप्शंस करा, तो जहाँ पहले दुकानें थी वहाँ लोगों को नहीं मिली, तो उन्होंने कुछ ऐसे रेजिडेंशियल एरियाज में ले ली, वहाँ पर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए, लोगों ने उसका विरोध किया। प्रॉब्लम ये थी कि एनओसी से आपने बहुत सारी लिस्ट बनाई हुई है, यहाँ से एनओसी वहाँ से, लेकिन उन लोगों का तब ये कहना था कि आस पड़ोस के लोगों से कोई एनओसी नहीं लेगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम बहुत देखने को मिलती थी। तो इस बार इस चीज को आप ट्रांसपेरेंसी अगर आप कहते हो, एक चीज मैं इसका जवाब दूंगा। पहले जो आपने क्वेश्चन रेज किया, किसी भी स्टेट में अगर आप देखेंगे उधर के लोगों से एनओसी नहीं लिया जाता है, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से एनओसी लिया जाता है। वहाँ के डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आपका स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, या वहाँ पर कोई इस तरीके का हॉस्पिटल है, इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उनसे एनओसी लिया जाता है। उसमें डिफाइंड है, इसमें कोर्ट की रूलिंग्स हैं, एक्ट है, रूल्स भी हैं, उसमें सारी चीज़ें मेंशन है। अगर ऐसी सिचुएशन पर ये तो अगर दुकान कहीं खुलती है, किसी जगह पर खुलती है दुकान, तो 4 लोग उसके हक में होंगे, 4 लोग उसके अगेंस्ट भी होंगे। तो ऐसा कोई प्रोविजन किसी स्टेट में नहीं है कि वहाँ के लोकल लोगों का सभी का एनओसी होना चाहिए और सहमति होनी चाहिए कि इस दुकान को तो आप इसमें लेकर, इस तरीके की कंप्लेंट्स हमको आएंगी तो उस पर हम एक्शन ले लेंगे। ये डॉक्टर साहब, ये श्रीनगर में भी ऐसे खुलने वाले हैं कि सिर्फ जम्मू प्रांत में? जम्मू श्रीनगर की भी शॉप है, दिल्ली की भी शॉप है, हाउ मच कश्मीर वाली है, वो डिटेल्स दे दी। सर इसमें एक चीज पूछी थी, आपने कुछ डिटेल्स दी भी है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जो ओल्ड पॉलिसी थी, जब लाइसेंस के प्रोसेस से सारा होता था, तब एनुअल रेवेन्यू कितना था और इस पॉलिसी के आने के बाद कितना हुआ? नहीं, सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है। क्या था जैसे वो? पिछले साल 1300 टोटल हमारे पास आया था, 1353 करोड़ हमें रियलाइज हुआ था ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में, जिसको हम पॉलिसी ईयर कहते हैं। 2021 जी बिल्कुल। हाँ, तो इस ये बार जो पॉलिसी है 21-22 में इम्प्लीमेंट हुई तो वो 1500। जी 1500 टारगेट हमारा, और उसमें हम 1331 अब तक रियलाइज कर चुके हैं। कुछ ऐसा भी प्रेशर आ रहा है जिन्होंने ई ऑक्शन के थ्रू लाइसेंस लिए है जो कर रहे हैं, तो कुछ लॉकडाउन और उसकी वजह से हमारा रेवेन्यू जितना बनता था वो पूरा नहीं हो पाया, तो हमारा टाइम एक्सटेंड कर रहा है। नहीं, लॉकडाउन तो आपने देखा होगा, इसमें थर्ड वेव में तो कोई लॉकडाउन था नहीं, हाँ, कोई था नहीं। कोई एक्सटेंशन की डिमांड है नहीं। चल रही थी। I think we should wrap up. थैंक यू।